Now here I am taking two plants, like having one plant having round yellow seed and another plant having wrinkled green seed. ठीक है, because we have taken here two trait, that's why this is called dihybrid trait, right? That's why this is called dihybrid trait. Why this is called dihybrid trait? Because of taking two traits, because we are studying the inheritance of two trait. यहाँ पर हम two traits की inheritance की study कर रहे हैं, that's why this is called dihybrid trait. Clear? Here we have taken round yellow, round, that is shape of the seed, wrinkled, that is also shape of the seed, and yellow, green, these are color of the seed. So that's why we have taken shape like round and wrinkled, clear, and color like yellow and green. So that's why we have taken two traits in this inheritance cross. That's why this is called dihybrid trait. Clear? So now what happened in this trait? During the formation of gametes, the gene or allele separate independently without affecting the pair of another trait. Suppose that यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y हैं, तो the allele will get separate from round and yellow from the allele, Y from the yellow pair, right? And they will reach into the same gamete. ठीक है, तो gamete formation के टाइम पे this is according to the law of purity of gametes. Law of purity of gametes states that कि during the formation of gametes the gene or allele get separated from their pair and reach to the gamete. ठीक है, and now what will happen in first generation? So they will give rise to the round yellow, just like the हाइट ऑफ द प्लांट टॉल ट्रेट डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे टॉल प्लांट बनता था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जस्ट लाइक हियर द F1 जनरेशन 100% will having the round yellow seed just like this plant. ठीक है, अगेन आई एम showing you कि in F1 generation the plant will have round yellow seed just like the parent round yellow seed, but the genotype is differ. Genotype you can say the round yellow will have capital RR capital YY, but F1 generation plant will have heterozygous genotype capital RR and capital R and small r and capital Y and small y. This is the genotype that is differ from the parental genotype, but the phenotype is similar to that of the parent. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. राउंड येलो ये भी प्लांट हैं, राउंड येलो ये भी प्लांट हैं, बट दे आर डिसिमिलर इन हैविंग दी जीनोटाइप. F1 जनरेशन के प्लांट में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है, जबकि पेरेंट के प्लांट में जो आपका जीनोटाइप है वो कैपिटल R और कैपिटल Y है. ये दिस इज द डिफरेंट. सो कीप इन माइंड कि हाउ दे आर डिफर. नाउ व्हाट हैपन इन द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में किस तरह से क्या होगा ये भी आप देखिए. सो इन F2 जनरेशन नाउ F2 जनरेशन में ये क्या होगा कि द एलील्स will get separate from their pair without affecting the pair of another trait. This law states that when the two trait allele present in a hybrid, they will get separate from their pair without affecting the allele of another trait. ठीक है, यानी कि जब कोई भी दो पेयर के एलील किसी हाइब्रिड में प्रेजेंट होंगे तो वो दूसरे को इफेक्ट किए बिना ही सेपरेट होकर के अपने अपने गैमेट्स बना लेते हैं. ठीक है, एंड ईच एलील फ्रॉम द ट्रेट विल randomly will assert independently with the another allele of the other trait. It mean to say कि any allele or trait will go with the any allele or any other trait. Right? Are you following this? It mean to say कि I am explaining here कि कोई भी एलील या कोई भी ट्रेट दूसरे ट्रेट के साथ randomly फ्यूज कर सकता है. Suppose that example I am giving कि it is not compulsory that round trait or round allele will always go with yellow trait or yellow allele. So it may be possible कि round trait
may be go with green allele or green trait. That's why the new color will be produced. So it is also not compulsory कि wrinkled trait or wrinkled allele will always go with green trait or green allele. So it may also go with yellow trait. ठीक है, यानी कि ये जरूरी नहीं कि राउंड वाला जो ट्रेट है या एलील है वो हमेशा येलो के साथ ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि रिंकल्ड वाला जो आपका ट्रेट है या एलील है वो ग्रीन के साथ ही जाएगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि राउंड ट्रेट और एलील विल ऑलवेज गो विद द ग्रीन ट्रेट एंड रिंकल्ड ट्रेट विल ऑलवेज विल गो विद द येलो ट्रेट। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, जिसके वजह से द न्यू ट्रेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन रेशियो 3:3, जिसके वजह से 3:3 रेशियो में दो नए ट्रेट बनेंगे। तो ये आपको कीप इट इन माइंड दैट डोंट नीड टू बी कंफ्यूज हियर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वाई वी आर कॉल्ड हियर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, बिकॉज एनी ट्रेट विल independently fuse with the another trait. That's why the new color will be produced. Is that clear? यहाँ पर आपको ये न्यू कलर कैसे प्रोड्यूस हुए, न्यू कलर क्यों प्रोड्यूस हो गए, तो वाई आर दे कलर प्रोड्यूस, बिकॉज दिस इज रिजल्ट ऑफ रैंडमली फ्यूजन ऑफ द gametes. This is the result of, this is due to the result of randomly fusion of the alleles of the different trait with the alleles of the another trait. That's why they are producing here. ठीक है, यहाँ पर ये जो नए ट्रेट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका रीजन यही हो रहा है कि कोई भी एलील या ट्रेट दूसरे एलील या ट्रेट के साथ फ्यूजन कर सकता है। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि फ्रेंडशिप अगर हमारी किसी भी स्टूडेंट के साथ है तो वो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से हमारे ही साथ रहेगा, वो स्टूडेंट किसी दूसरे के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता है और अपने एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकता है। आर यू फॉलोइंग इट? तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि राउंड जरूर नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में राउंड येलो सीड बनते रहें, रिंकल्ड ग्रीन सीड ही बनते रहें, प्लांट बनते रहें। इट मे बी पॉसिबिलिटी कि राउंड विल बी प्रोड्यूस्ड विद द ग्रीन एंड रिंकल विल बी प्रोड्यूस विद द येलो कलर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर न्यू ट्रेट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो द न्यू ट्रेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रैंडम फ्यूजन ऑफ द एलील्स ऑफ द ट्रेट विद द एलील्स ऑफ द अनदर ट्रेट। ठीक है, कोई भी एलील या ट्रेट किसी दूसरे एलील या ट्रेट के साथ फ्यूज कर सकता है। दैट्स वाई द न्यू ट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन नाउ? Any confusion? For making this table कि how will you simplify this table, किस तरह से आपको बनाना है। सिंपली आप क्या करिए, जैसे कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल Y स्मॉल y है। अब आप यहाँ पर सिंपली गैमेट्स किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, यू विल वॉच हियर लाइक दिस। यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे आप एक बार गैमेट बनाइए इस तरह से, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ फर्स्ट, कैपिटल R स्मॉल y के साथ। ठीक है, आप पहले इनको लिख लीजिए यहाँ पर कैपिटल R, ठीक, आप लिखिए कैपिटल Y, एक गैमेट बन जाएगा। फिर ये जरूरी नहीं है कि ये आपका सीक्वेंस इस तरह से रहेगा, इसमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली लर्न हो जाए, इसको ध्यान रखिए। एक बार आपने लिख लिया कैपिटल R कैपिटल Y एंड सेकेंड टाइम यू विल राइट कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, यानी कि इस पेयर के जो एक एलील है आपका कैपिटल वाला इन दोनों पेयर के साथ जा रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। यही तो आपको यहाँ प्रूव करना है। अब देखिए इसी पेयर का ये जो स्मॉल एलील है, जो स्मॉल r है, आई एम शोइंग यू अगेन, इसी पेयर का जो ये एलील है स्मॉल r, दिस विल ऑल्सो गो विद द अनदर पेयर राइट। अब ये छोटा वाला जो स्मॉल r है वो इसके साथ भी फ्यूज करेगा, इसके साथ। इसको आप ऐसे शो करिए, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो आप इस तरह से 4 गैमेट बना लेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। पहले आप लिखिए कैपिटल R, ठीक, फिर लिखेंगे कैपिटल Y, फिर आप लिखिए कैपिटल R, क्या लिखेंगे बोलिए, स्मॉल y लिखेंगे ना। अब आप अगले पर शुरू हो जाइए, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो वन साइड में आप ये गैमेट लिख लेंगे, वन साइड में आप गैमेट लिख लेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, और फिर इन्हीं गैमेट को आपको दूसरे साइड में लिखना है। किस तरह से, आप ये भी देखिए,
जैसे सपोज दैट मैंने वन साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, एक बार देखिए इनको, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगेन सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये बना दिया, देखिए सपोज दैट मैं आपको बना रहा हूँ ये यहाँ, ये एक तरह की टेबल बना रहा हूँ ये, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ठीक, गैमेट्स के लिए 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर आप लिखिए गैमेट, एक साइड में आप लिखिए, वन साइड में आपको लिखना है, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको मैंने बताया था कैपिटल आर, बोलिए कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल का शुरू करिए आप, कैपिटल आर और क्या बचा था, स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर आप लिखिए स्मॉल आर वाला, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर आप लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। ये हो गए आपके मेल गैमेट। अब आप दूसरी साइड में लिखिए, यहीं पर आप इसको जैसे मैंने आपको बनाया इसी तरह में आप इसी तरह से भी आप बना सकते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टेबल यू कैन राइट सेम गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, और स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये लिखेंगे, ये आपके हो गए, ठीक। अब यहाँ पर इन गैमेट्स को आपको इन टेबल्स में कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरह लिखेंगे, तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो आप लिखेंगे कैपिटल आर आर को पहले लिखिए, वाई वाई को बाद में लिखिए, तो एक आपका जो बॉक्स हो जाएगा वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसी तरह से जिस टेबल में जिस रो के सामने जो भी आ रहा है, सपोज दैट आपको लार्ज करके मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, सपोज दैट दिस इज द टेबल, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताया यहाँ पर सपोज दैट मेरा गैमेट है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ऐसे ही दूसरी रो में आपका जा रहा है, फिर देखिए आप अनदर रो को देखिए,